فائنینشیل نیوز پیپر ایڈیٹرز کونسل کی جانب سے تمام مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس تقریب میں موجود ہیں، اور ہم آج اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس تقریب کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور اس کی سعادت ہمارے بینکنگ نیوز چینل کے میزبان اور قاری سمیع الدین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا حمد اور نعت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، عزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله، صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حمد باری تعالی۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ،
نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے. دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی. میرے آنے سے پہلے چپ کے کیا پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. عرض غلام فقیر ہے اب داخل جنت ہوں ہم سب. عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہوں ہم سب. ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جزاک اللہ. فائنینشیل نیوز پیپر ایڈیٹرز کونسل کی تقریب میں تمام مہمانوں کو ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اب میں دعوت خطاب فائنینشیل نیوز پیپر ایڈیٹرز کونسل کے سیکرٹری جنرل ساجد ورک صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اسٹیج پہ اور کونسل کے بارے میں اس کی بتائیں پوری. ساجد ورک صاحب. السلام علیکم رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائنینشیل نیوز پیپر ایڈیٹرز کونسل کا قیام 2009 میں اس وقت ہوا جب بینکنگ سیکٹر پہ شائع ہونے والے اخبارات مالیاتی اداروں کی کارکردگی اور سرگرمیوں کو شائع کرنے والے اخبارات کو کوئی صحافتی تنظیم قبول کرنے کو تیار نہیں تھی. تو میں نے محسوس کیا کہ ہمیں ایک ایسا اپنا ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے. میں نے مشاورت کی اپنے دوستوں سے جن میں میرے بینکنگ انڈسٹری کے مجھ سے کچھ سینئر بھی لوگ ہیں, کچھ جونیئر بھی لوگ ہیں. سینئر میں رمضان علی صاحب تھے, سینئر میں ہمارے ندائے بینکران کے صدائے بینکران کے جاوید جعفری صاحب ہیں. اگر بلا مبالغہ میں کہوں کہ وہ بینکنگ انڈسٹری کے بابا صحافت ہیں تو غلط نہیں ہوگا. اور اس کے بعد دیگر اخبارات کے مدیران جن میں خالد حقی صاحب ہیں میرے دوست, وہ نیشنل بینک سے بھی وابستہ رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے حماد صاحب ہیں کمرشل چینل سے. تو ہم نے مشاورت کی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو مالیاتی ادارے, بینکنگ انڈسٹری جو
जो कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। आप देखें गुज़श्ता कई दहाइयों में पब्लिक सेक्टर के जितने भी इदारे हैं वो तकरीबन बंद हो चुके हैं या बंद होने के करीब है, खसारे में जा रहे हैं। लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री हमारे यहाँ एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज भी पाकिस्तान को एक मईशत की जो पटरी है उसमें कम अज कम चलाए रखे हुए हैं। बहुत से मसाइल होते हैं, हर जगह पे होते हैं, घरों में भी होते हैं, जहाँ आप जॉब कर रहे होते हैं वहाँ भी होते हैं, लेकिन उन मसाइल को मशावरत के जरिए हल किया जाता है। तो ये 10 साल से आज 2019 से 2009 से लेकर आज 10 साल हो गए इस प्लेटफॉर्म को। मुझे खुशी है कि मेरे साथ तमाम साथियों ने साथ दिया, लेकिन आज उनकी गैर हाजिरी पे जो इस वक्त मौजूद नहीं है, मुझे दिली अफसोस भी है कि मैंने बड़े खलूस दिल से उनको इस इवेंट में बुलाया था। उनकी अहमियत को उजागर करने के लिए मैंने कोशिश की कि जहां मैं या रमज़ान साहब जिस मुकाम पे खड़े हैं आज उन्हें भी उस मुकाम पे खड़ा किया जाए, लेकिन इत्तफाक है वो नहीं आए। उनकी मेहरबानी, उनसे गुजारिश है ये प्रोग्राम किसी न किसी सूरत में उन तक पहुंच ही जाएगा कि जो मुआशरे तरक्की करते हैं वो इत्तेहाद, यगानगत, यकजहती की बुनियाद पर करते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 3D का बहुत बड़ा अमल दखल। 3D बज़ाहिर तो बचपन में जब फिल्में देखा करते थे तो उस वक्त एक ख़ास चश्मा होता था, वो 3D कैमरे के ज़रिए एक फ़िल्म बनती थी जिसको एक ख़ास चश्मे के ज़रिए देखा जाता था। लेकिन अगर अमली ज़िंदगी में देखा जाए तो 3D का बहुत बड़ा रोल है, जिससे सोसाइटी तरक्की करती है, मुल्क तरक्की करता है और इंडिविजुअल तरक्की करते हैं। उसमें है डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन। तो ये तीन चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जो अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपना लेता है तो कोई रुकावट उसके आगे हाइल नहीं होती। आज की तकरीब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के SQG ग्रुप के लिए है। ये उनके एजाज में ये तकरीब मुनक्कद की गई है। बड़ा प्रोग्राम करने की ना तो हम इस्तात रखते थे और ना ही शायद मैनेज कर पाते, इसलिए हमने एक ग्रुप को चुना। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के SQG ग्रुप में QG में 3 डिपार्टमेंट आते हैं, जिसमें स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग डिवीजन को कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कहा जाता है, स्पोर्ट्स डिवीजन है और उसके अलावा CSR डिपार्टमेंट है। ये तीनों डिपार्टमेंट इस ग्रुप के अंडर काम करते हैं। CSR की खिदमत नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की गैर मामूली और इंतहाई काबिल इस्ताइश है। पाकिस्तान में किसी किस्म की नागहानी आफात आई हो, ज़ल्ज़ले की सूरत में हो, वो सैलाब की सूरत में हो, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा डाला और अपना एक नुमाया किरदार अदा किया। स्पोर्ट्स का शोबा है तो स्पोर्ट्स में भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के दीगर तमाम अदारों से हमेशा आगे रहा है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का स्पोर्ट्स खा वो हॉकी के हवाले से हो, वो क्रिकेट के हवाले से, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आलमी सतह पर पाकिस्तान को नामवर खिलाड़ी दिए हैं। और इस वक्त नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्पोर्ट्स डिवीजन के हेड, ये मैं एक बात नौजवान नस्ल को वाज़िया कर दूं कि जो क्रिकेट के शायकीन हैं और जो नौजवान नस्ल हमारी नहीं जानती, उनके लिए ये सरप्राइज है कि
आज पाकिस्तान के लेजेंड, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब इकबाल कासिम साहब उनके साथ मौजूद हैं। ये नई जनरेशन के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि आज जिनकी वो टीवी पे तारीफ सुनते थे क्रिकेट के हवाले से, आज वो शख्सियत उनमें मौजूद है। तो इस वक्त भी नेशनल बैंक स्पोर्ट डिवीजन के वो हेड हैं इकबाल कासिम साहब, इनकी बहुत सारी खिदमत है। नेशनल बैंक ने बाकायदा स्पोर्ट्स को फ़रोग देने के लिए बाकायदा एक स्टेडियम तामीर किया, जो 2009 में साबिक सदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सैयद अली रज़ा साहब ने शुरू किया, जिसका इफ्ताह उस वक्त के कायम मकाम शायद सदर थे या सेनेट थे, चेयरमैन सेनेट थे, मियां मोहम्मद सुमरो, उन्होंने उसकी संग बुनियाद रखी। तो आज वो कंप्लीट एक आलमी मेयार का स्टेडियम पाकिस्तान में मौजूद है। आपके शहर कराची में मौजूद है, क्लिफ्टन में, जहाँ पे अंडर 19, अंडर 16, अंडर 17 टीम को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और उनको आगे नेशनल टीम में भेजा जाता है। तो वो उसका सारा क्रेडिट जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्पोर्ट डिवीजन को जाता है, जिसके सरबराह हैं जनाब इकबाल कासिम। स्ट्रेटजिक मार्केटिंग डिवीजन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की टीम इस वक्त बड़ी बासलाहियत अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है, जिनमें हमारे इस ग्रुप के SQG ग्रुप के हेड हैं शौकत महमूद खटक साहब, कॉर्पोरेट ग्रुप के हेड जनाब EVP एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सैयद इर्तज़ा काज़मी साहब इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जब नेशनल बैंक की अच्छाई की बात हो तो क्लैपिंग ज़रूर करें। तो आज इस तकरीब का एहतमाम जो है वो इसलिए किया गया कि SQG ग्रुप के जो लोग हैं, जिनकी कारकर्दगी गैर मामूली और मसाली है, उनको हम अल्फाज के साथ साथ एक छोटे से नजराने के साथ उनको अप्रिशिएट करें, तो वो कम अज़ कम उनकी हौसला अफजाई होगी, वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ मौजूद हैं ट्रेड यूनियन के लोग भी, और अगर मैं ट्रेड यूनियन की तरफ नज़र दौड़ाऊँ तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त कराची के अंदर जो बैंकिंग इंडस्ट्री के पाकिस्तान कराची से बाहर तो हो सकता है, लेकिन इस वक्त कराची के अंदर जो है वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त सीनियर तरीन मजदूर रहनुमा है लियाकत अली साहिब, हबीबुद्दीन जुनैदी साहब के बाद सीनियर तरीन लीडर हैं, और हमेशा इन्होंने पॉजिटिव सियासत की है। और शायद लोग ये नहीं जानते कि वो एक समाजी कारकुन और मजदूर रहनुमा है, और आज मैं बता देता हूँ कि वो एक बेहतरीन लिखारी भी है, बेहतरीन सहाफ़ी भी है, बेहतरीन कालम निगार भी है, लेकिन उन्होंने शायद इस सलाहियत से कभी इस्तेफादा हासिल नहीं किया, और उम्मीद करता हूँ कि अपने रिटायरमेंट के बाद वो हमारे ही बरादरी में शामिल होंगे। तो इसके बाद मुझे इंतहाई खुशी है कि हमारे हैदराबाद से नेशनल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन सिंध के सेक्रेटरी जनरल जनाब राव ज़हीर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हमारे एम्प्लॉइज़ फ्रंट हेड ऑफिस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनाब अनवर शाह साहब मौजूद हैं। नेशनल बैंक एम्प्लॉइज़ फ्रंट सिंध CBA के सेक्रेटरी जनरल जनाब सैयद हैदर साहब मौजूद हैं। इसके अलावा ऑफिसर नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन जनाब हाजी अनवर बलोच साहब का जो ग्रुप है, उनके
सेक्रेटरी जनरल जनाब अजहरुल इस्लाम साहब, जनाब रुस्तम अली साहब व दीगर दोस्त मौजूद हैं। मुझे बेहद खुशी हुई है और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई है कि मेरी तकरीब में, बल्कि उनकी अपनी तकरीब में जनाब खालिद हकीम साहब ने कि वो तशरीफ़ लाए। डिवीजनल हेड स्पोर्ट डिवीजन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जनाब इकबाल कासिम साहब को भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। जनाब इकबाल कासिम साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब इकबाल कासिम साहब। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और डिवीजनल हेड एसक्यूजी डिपार्टमेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सैयद खुर्रम हुसैन शाह साहब। जनाब अली अहमद ज़ेब साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपना अवार्ड वसूल करें। जनाब सैयद इब्ने हसन स्पोकमैन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वो तशरीफ लाए और इनके साथ साथ मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब सैयद ताहिर रिजवी साहब से, CEO वन एप्पल इनकॉर्पोरेशन पाकिस्तान से। सर प्लीज मैं ये चाहूंगा कि ये अवार्ड एक सैयद को दो सैयद दे रहे हो। सईद इस्माइल अबड़ो साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब शौकत महमूद साहब का अवार्ड सैयद इर्तजा काज़मी साहब वसूल। और अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एम्प्लॉइज फ्रंट सिंध CBA के सेक्रेटरी जनरल जनाब सैयद सईद हैदर कि वो तशरीफ लाएं और सैयद ताहिर रज़ा साहब से अपना अवार्ड वसूल करें। सरप्राइज गेस्ट थे हमारे इस तकरीब के डिप्टी चेयरमैन सेनेट जनाब सलीम एच मांडीवाल, लेकिन इत्तेफाक से वो आज इस्लामाबाद में मीटिंग की वजह से यहाँ नहीं पहुँच पाए। लेकिन उनकी मोहब्बत, उनकी मेरे साथ वाबस्तगी कि उन्होंने नुमाइंदे के तौर पे स्पेशली अपने PS जनाब नदीम शेख साहब को भेजा है और मैं चाहूँगा कि उनकी शील्ड वो उनके बिहाफ पे वसूल करें।
दावत दूंगा हमारे इस तकरीब के मेहमान खसूसी जनाब सैयद इर्तज़ा काज़मी साहब कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया विक साहब। सबसे पहले तो मैं रमज़ान साहब और विक साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। किसी को अप्रिशिएट करना इससे ज़्यादा बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। मेरा अपना मानना है, जो मेरे सारे साथी मौजूद है, किसी की तरफ एक मुस्कुरा के भी देखना सदका जारिया है। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज जेस्चर्स। तो मैं चाहूँगा कि एक भरपूर तालियों में इसका दूसरी चीज़ जो विक साहब ने शुरू में बोला था, वक्त की पाबंदी का, बिल्कुल सही बात है। ना सिर्फ वक्त की पाबंदी किसी भी जगह के लिए, हमारा नेशनल एटीट्यूड बन गया है कि हम वक्त की पाबंदी नहीं कर पाते। इससे दूसरे की रिस्पेक्ट शो होती है कि दूसरे लोग जो इंतज़ार करें उनका भी अपना वक्त है। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें जो है वो ये कि अल्लाह ताला के मुनसिफ होने की इससे बड़ी कोई दलील नहीं है कि उसने हर इंसान को इस दुनिया में वही 24 घंटे दिए। ये कहना कि मेरे पास वक्त नहीं है तो दूसरे के पास है, सबके पास बराबर वक्त है, ये आदिल होने की नहीं, मुनसिफ होने की दलील है। इंसाफ, सबके पास वही 24 घंटे, उसमें आपको जिस तरह इस्तेमाल करना है। अपनी सबसे जस्टिफिकेशन दूँ, मैं थोड़ी देर से आया था क्योंकि मोहब्बत है इन लोगों की। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, शौकत साहब से गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि इस्लामाबाद में किसी ऑफिशियल चीज़ के लिए मौजूद हूँ तो आप मेरी तरफ से अगर चले जाएँ तो दैट्स वुड बी नाइस। कुछ घरेलू मसरूफियात सबकी होती है वीकेंड्स पे। मेरी बेटी मेरे साथ है, वी वर सपोज्ड टू गो समवेयर एल्स, लेकिन मैंने कहा मैं पहले अटेंड कर लूँ। सो बट अगेन ये इन लोगों की मोहब्बत है, बिकॉज जिस तरह विक साहब और रमज़ान साहब ने हमेशा साथ दिया है, गोइंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट स्टेज है IT के हवाले से ताया साहब ने बहुत अच्छी बात की, उसके ऊपर भी मैं आगे आऊँगा। ये डिजिटल एज और IT की एज है और अब जो दूसरी तरह का वॉरफेयर भी हो रहा है इन बिजनेस, आउट ऑफ बिजनेस, एवरीवेयर इज हैज टू डू विद दीज थिंग्स। इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और कहाँ इसको लेके जाना है, जो इदारे हैं उसको किस तरह बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमारे अंदर एक फियर होता है, फियर ऑफ द अननोन। जैसे एक ज़माना था कि जब आप सब लोगों के पास अब वो है, एक ज़माने में मैनुअल गाड़ियाँ होती थी, अब ऑटोमेटिक गाड़ी। उसको मैकेनिक कहता था यार ऑटोमेटिक गाड़ी मत लेना, उसको वो गियर बॉक्स ख़राब हो जाता है, पूरा चेंज करना पड़ता है। एक माइंडसेट होता है, बिकॉज उसको पता था कि अगर ये चीज़ आ गई या रिचार्जेबल बैटरी की जगह मेंटेनेंस फ्री बैटरी आ गई तो मेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। ये हमारे साथ भी ये मसला है। शाह जी ऐसा ही है ना, बैंक में भी कहते हैं कि सब कुछ सिस्टम कंप्यूटर पे चला गया तो हम क्या करेंगे। सो इससे बाहर निकलें, अपने आप को, अपने बच्चों को, कमिंग जनरेशन को नई चीज़ों की तरफ लेकर आएं। कमिंग टू अ वेरी इम्पोर्टेंट सरप्राइज, बहुत सारी सरप्राइजेज हैं आज बाय द वे। वो जो चीफ गेस्ट थे वो नहीं आ पाए, उनकी जगह दूसरा हो गया। मंडवाला साहब नहीं आ पाए, सरप्राइज स्टेज गिर गया। नून वैसे ही नहीं था, यहाँ का भी एंड चला गया। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, बट दिस शोज द रेजिलियंस ऑफ, जैसे दार साहब ने बोला, इस हम लोगों का, इस मुल्क का, कि उसको किसी न किसी तरह लेके आगे की तरफ लेके चले जाते हैं। इस जज्बे को आगे लेके जाना है। लेकिन प्रॉब्लम एक यही है, जो ताहिर साहब ने जिस तरह लोकल ब्रांड एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स बोला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वजह उसकी ये कि वी आर वेरी लो इन नेशनल प्राइड। हम जो बाहर के ब्रांड्स हैं, बाहर की चीज़ें हैं, वो ज़ाहिर है बहुत खुशी से उसको अडॉप्ट कर लेते हैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर द प्राइस इज। सो मच सो आप किसी भी खूबसूरत जगह पे जाएं पाकिस्तान के अंदर ही, सबसे पहले मुंह से निकलता है कितनी अच्छी जगह, लगता है पाकिस्तान में ही नहीं है। दिस इज अ माइंडसेट, ये हम सब लोगों ने आपस में चेंज करना है। अब ये माइंडसेट ऊपर से नीचे तक होता है। इस मुल्क को तरक्की देना है तो बाहर से लोग आएंगे या काम करेंगे। क्यों? हम लोग नहीं है क्या काम करने के लिए इस मुल्क में? क्यों लोग आएंगे बाहर से काम करने के लिए? हम ही बनाएंगे चीजें, हम ही इस्तेमाल करेंगे, हम ही इसको आगे लेके जाएंगे। Now coming back to जो एक वन एप्पल के हवाले से ताहिर साहब ने बोला, आई रियली अप्रिशिएट, आपने बहुत जज्बाती तकरीर की और अपने ख्याल का इजहार किया। गुड पॉइंट। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये भी होता है
اب کہنے کو یہ ہم بھی ایک پاکستانی بینک ہے اور ایک دوسرا بھی پاکستانی بینک ہے. Are we comparable? Maybe not. But it will take time for somebody else to reach to that level. That's one aspect جو کہ آپ پچھلے 10 سال سے کر رہے ہیں. Apples to apples comparison جو کہ literally آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ چیز ہوتی ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور آپ اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. اور ہم بھی نیشنل بینک کے حوالے سے جب ہم بھی کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے بینکوں میں, کارپوریٹ بینکنگ اور انویسٹمنٹ بینک کے حوالے سے بول رہا ہوں, مینڈیٹس کے اندر, تو فیور فورن بینکس کو کیا جاتا ہے. بیکاز فار سم ریزن کہ اگر وہ وہاں سے آ رہا ہے تو وہ اس کی جو وہ ہوگی وہ سوچ ذرا زیادہ ہوگی یا بہتر ہوگی, وہ زیادہ اچھا سولوشن دے گا. سیم ود اس واٹ یو آر گوئنگ تھرو. سو ایک تو اپنی محنت سے بھی اس کو آگے لے کے جانا ہے. پلس سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ جو آپ نے بتایا, اسمبلنگ تو وہی والی ہوتی ہے, چائنا میں ہو یہاں ہو, اگر آپ کا اسٹینڈرڈ وہی ہے تو وہی ہے. سب لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ویلیو کا فرق ہم وہاں آگے دے رہے ہیں وہ اگر ملک میں یہ جس کو امپورٹ سبسٹیوشن کہتے ہیں, تو امپورٹ سبسٹیوشن ہوگا تو ڈالر باہر نہیں جائے گا, جبکہ ہم گاڑیوں کے اوپر بھی امپورٹ کے اوپر یہ چیزیں لگا رہے ہیں. سو یہ تو آپ بڑی اچھی وقت پہ ہیں اس وقت اس ملک میں, اور اس حکومت کا جو ایمفیسس ہے ڈالر کو سیو کرنا, تو میرے خیال میں ترقی ہوگی. میرے بہت سارے دوست سی ایس آر اور اسپورٹس کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, میں اس اسٹیج کے گرنے کے حوالے سے ایک چیز یاد ہے, ان کو فاروقی کو یاد ہوگا, ہم نے ایک گرلز باکسنگ ٹورنامنٹ کرایا تھا, ہم لوگ تھے وہاں پہ, یاد ہے شاہ, تو یہ اسٹیج بنا رہے تھے. میں تھوڑی دیر پہلے, میری عادت ہے میں کبھی کبھار جا کے چیک کر لیتا ہوں, بٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ایونٹ بڑا اچھا ہو گیا, سب لوگ آ گئے, ایوارڈ لے لیا, ہار پہن لیے, اجرک پہن لی, تالی. اس کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے صبح سے اس اسٹیج کو بنایا, اقبال صاحب آپ یو کین اپریشیٹ دیٹ بیکاز یو ہیو بین ا پارٹ آف دیٹ. آپ نے کئی ایسے وہ کر رہے ہیں, آئی واز تھرلی امپریسڈ. یہی جو بات ابھی بیچ میں ہو رہی تھی کہ اس کو رسی سے باندھ دو, یہ دونوں لوگ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے وہاں پہ کیا, میں اس کا گواہ ہوں. سو آئی ووڈ لائک ٹو فار ایوری ون ٹو ہیو اے راؤنڈ آف اپلاس فار دیز گائز, فار نیشنل بینک, سی ایس آر اینڈ اسپورٹس ڈویژن. وہ جو کچھ یہاں پہ کرتے ہیں شارٹ نوٹس کے اوپر, اس ترقی کے لیے کوئی نہیں کرتا. بعض میں نے سنا ہے کہ ایک دوسرا بینک ہے اس نے وہ کرکٹ ٹیم ہی اپنی ختم کر دی ہے, بہت بڑا بینک ہے, ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ایسے کرنے کا, اور ڈسٹرکٹ کرکٹ وغیرہ اس کے حوالے سے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, کمنگ بیک ٹو دا پارٹ آف اپریسیشن, نیشنل بینک کی بھی وہی والی بات ہے خالد صاحب, اسپیشلی جیسے کہ اور لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ جی فلانا بینک وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا. نیشنل بینک کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات ہو کہ ہاں ضرور انہوں نے ضرور ایسا کیا ہوگا, ایسا نہیں ہے. پرسپشن جو ہے دیٹ از ناٹ ایز دا ریالٹی کچھ اور ہے, پرسپشن کچھ اور ہوتا ہے. اچھی چیز کی تعریف کریں, مثبت تنقید کریں تاکہ اس سے بہتری کریٹ ہو. مذاق مستی ہیومر اپنی جگہ کے اوپر ہے, بٹ اس سے کسی کی تذلیل کرنا یا اس کو ذہنی تناؤ کا شکار کرنا کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے. With these small words, I once again thank you all for being here and for Ramzan Saab and Rick Saab for inviting me. شکریہ. اب میں اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب شوکت محمود خٹک صاحب, گروپ ہیڈ SQG سروس کوالٹی گروپ, سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ساجد صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آپ کی اس کاوش کو ہم بہت تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں. امید ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہ چوری دامن کا ساتھ ہمیشہ رہے گا, اور آپ بینک کے لیے کام کرتے رہیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو ونس اگین بہت شکریہ. السلام علیکم, میرا نام سید خرم حسین ہے, میں ڈویژنل ہیڈ اسٹریٹجک مارکیٹنگ ڈویژن نیشنل بینک آف پاکستان سے میرا تعلق ہے. یہ جو آج کا پروگرام ہوا ہے بہت زبردست, رمضان صاحب نے بھی اور ساجد صاحب نے بھی بہت زبردست پروگرام کیا ہے, اور ان کی دونوں کے اخبار جو ہیں وہ بینکنگ سیکٹر کے لیے بالخصوص اور نیشنل بینک کے لیے ہمیشہ پازیٹیو نیوزیں ہوئی ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو کام کیا ہے بینکنگ سیکٹر کے لیے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ اس طرح ہی کام کرتے رہیں, اور اکانومی سے ریلیٹڈ, جو بینکنگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو پازیٹیو انداز میں, مثبت انداز میں اخبار میں پرنٹ کرتے رہیں, تاکہ عوام کو بھی اویئرنیس آئے کہ جو بینکنگ سیکٹر کر رہا ہے, بالخصوص جو نیشنل بینک کر رہا ہے CSR ایکٹیویٹی کے لیے, SMD کے لیے, اس کو بھی اجاگر کریں, اور آئندہ بھی اسی محنت سے اور تبادل سے کام کرتے رہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام اقبال واحد ہے, میں سینئر وائس پریزیڈنٹ اور ڈویژنل ہیڈ CSR ڈویژن میں ہوں SQG گروپ کے. سب سے پہلے میں بینکنگ نیوز کا بہت بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے بہت
बहुत ही पुरवकार तकरीब का इनक़ाद किया। और क्योंकि हमारे माशरे में बेसिकली जो है हौसला अफजाई की जो बहुत बड़ा फुकदान पाया जाता है, और किसी भी शख्सियत के लिए या किसी शख्स की सलाहियतों को इजाफा करने के लिए उसकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी सलाहियतें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और हमेशा जो है वो मुलाजमीन और CSR के हवाले से बड़ी खुदखदमात कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके, और इसमें हम कोशिश भी ये करते हैं कि समाजी खदमात ज़्यादा से ज़्यादा की जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और मैं चाहूँगा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंशियल न्यूज़ एक मुश्तरका तौर पर कोई कैंपेन स्टार्ट करें ताकि हम CSR के हवाले से लोगों की खिदमत में ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें चीज़ों। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर एडिटर काउंसिल ने अभी हाल ही में एक तकरीब मुनक़िद की है और इसमें माशाल्लाह CSR की बेहतरीन 2018 की बेहतरीन कारकर्दगी के ऊपर इकबाल भाई आपको अवार्ड भी दिया है, इस पर आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमें इस अवार्ड से नवाजा। बात ये है कि अवार्ड तो चीज़ें खैर किसी की एक खिदमत या किसी के जो काम करते हैं उसके हवाले से एक एक्नॉलेजमेंट होती है। असल बात है जो खिदमत हम आवाम की कर सकें, माशरे में लोगों की खिदमत सकें, और नेशनल बैंक हमेशा इसमें आगे से आगे रहा है। तो अवार्ड तो सिर्फ एक ज़रिया होता है चीज़ों के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि नेशनल बैंक हमेशा नेशनल बैंक ने जो है बहुत खिदमत की हैं सामाजिक हवाले से। फाइनेंशियल सेक्टर में तो ऑलरेडी काम करता ही रहा है, लेकिन CSR एक्टिविटीज़ और सामाजिक काम से हमेशा नेशनल बैंक जो है बहुत आगे रहा है और हमेशा कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ़ायदा हो सके। हमारी कोशिश ये है कि हम इस साल भी बेहतर से बेहतर इस मुल्क की कौम की खिदमत कर सकें। जी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये लोग एक्टिव हैं इस लिहाज से कि जो बैंकरान न्यूज़ होती हैं या बैंकर्स के इंटरेस्ट न्यूज़ होती हैं उनको ये काफ़ी अच्छी कवरेज देते हैं अपने अखबार में, और यकीनन इनके जो पढ़ने वाले हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे होंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी तरह से इसको इन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इब्न हसन, तर्जुमान नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैंने वीकलीज़ न्यूज़पेपर्स का जो एक बहुत बड़ा फोरम है और पाकिस्तान की इकनॉमी में जो किरदार है ये इन अखबारात का बहुत अहम है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हमेशा ऐसे अखबारात, ऐसे फोरम्स को वेलकम करता है और कोशिश हमेशा नेशनल बैंक की रही है कि पाकिस्तान में पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग में जो लोग मीडिया अपना किरदार अदा कर रहे हैं उनको सपोर्ट किया जाए। आज ये मामला उल्टा था और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को ही एप्रिसिएशन के लिए इन्होंने मुंतखब किया, जिनके हम नहायत शुक्रगुजार हैं। साजिद विर्क साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं और रमज़ान अली जो कि एक बहुत पुराने मंझे हुए अखबारात के एक ऐसे फ़र्द में हैं जिनका कि यहाँ पे तस्करा ज़रूरी है कि ये दोनों एक हमेशा मुस्बत इमेज बिल्डिंग, ख्वाह वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो या पाकिस्तान की तमाम बैंकिंग सेक्टर, और अब तो इन्होंने IT सेक्टर को भी अपने साथ रख लिया है और यकीनन पाकिस्तान का जो फ्यूचर है और उसके नौजवानों का जो फ्यूचर है वो IT के बगैर नामुमकिन है। IT और बैंकिंग लाज़िम व मलज़ूम है और यकीनन ये तरक्की इन दो सेक्टर्स के बगैर पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। मैं दुआगो हूँ इन दोनों जर्नलिस्टों के लिए, इनके फोरम्स के लिए, इनके अखबारात के लिए कि इसी तरह वो पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर ख़ुसूसन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को हमेशा उसकी काविशों को उजागर करता रहेंगे। और यकीनन ये जो इनका वेब चैनल है, बैंकिंग न्यूज़ चैनल, और ये जो जर्नलिस्टों की एसोसिएशन है, एडिटर्स बैंकिंग का एक बहुत बड़ा फोरम है, ये इनकी एक बहुत बड़ी काविश है। मैं इनके लिए दुआगो हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो तमाम काविशें हैं, काम हैं और जो इनका किरदार है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, और यकीनन उसकी मैनेजमेंट इसमें काबिल तहसीन है। हम तो वर्कर्स हैं और हम इन मैनेजमेंट की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हमारे ग्रुप चीफ और सदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान
اور بورڈ آف ڈائریکٹرس کی جو ہدایت ہمیں ملتی رہتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم اپنے باسز کے ذریعے، ہم میڈیا کے ساتھ ایک مثبت اور اچھے طریقے سے اس کو پیش کرتے رہتے ہیں، اور ان کی ایک کوشش بھی رہتی ہے کہ یہ ہم سے مثبت خبریں لیتے رہیں اور اپنے تمام پرنٹ اور الیکٹرانک سوشل میڈیا میں بھی اس کو عام کرتے رہیں۔ میں آخر میں ساجد وگ صاحب کا اور رمضان صاحب کا اور ان کی ٹیم کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، ان کا شکریہ کہ وہ آئے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ آج ہم اپنی ویوز ان سے شیئر کریں۔ تھینک یو۔ دیکھیے میرے لیے یہ سرپرائز ہے کہ جو خاص طور پہ میڈیا سے جن کا ریلیٹڈ ہے وہ ایسی یونیک تقریب آج انہوں نے آرگنائز کی ہے، تو یہ اپریشیٹیبل ہے پورے گروپ کو، اور خاص طور پہ ان کا چونکہ پورا بینکنگ انڈسٹری میں ایک بڑا رول ہے اور لوگوں کی جو بیسک رائٹس ہیں اس کے اوپر ہمیشہ انہوں نے آپ لوگوں کے گروپ نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو یہ گروپ جو ہے یہ بڑا موٹیویشنل ہے، اس سے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو ایک موٹیویشن جائے گی۔ تو یہ ضرورت اس ملک میں جو سب سے زیادہ اس وقت ہے وہ ہے موٹیویشن کی۔ اس کی کیوں ضرورت ہے کہ جو آج کے بچے ہیں یا ورکنگ کلاس ہے یا جو فیصلہ کن اتھارٹیز ہے ان میں موٹیویشن نہیں ہے۔ جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے صحیح ہیں، جو بیچارے ورکنگ کلاس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کس کے پاس جائیں، اور جو بچے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے سارا ہی سچ ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو بنیادی طور پہ کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں اس کی لائن آف پہ ہمیں جو ہے سوچنا ہوگا کہ اگر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ کیا ہیں اور اس کو کیسے ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں، اس کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہے کہ جب موٹیویشنل لیول جو ہے وہ فیصلہ ساز اتھارٹی کو بھی اس کو ریویو کرنا ہوگا، اور جو ورکنگ کلاس ہے اس کو یونائٹ ہو کر اپنے رائٹس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور اس وقت جتنا خاص طور پر چونکہ میں ٹریڈ یونین سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ہمیشہ مڈل کلاس کی آواز کو ہم نے اٹھایا ہے، اور اس وقت جتنی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں، اور وہ چاہے وہ حکومتی لیول پہ ہوں، چاہے وہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں کے مالکان کے ہوں یا اداروں کے سربراہوں کے ہوں، وہ کانسٹیٹیوشن کی لائن میں پالیسیاں نہیں بنا رہے، جس کی وجہ سے جو لوگوں کے رائٹ جو ہے وہ سلب ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے آج نوجوان جو بچے ہیں، مجھے ایک بار جو ہے وہ بڑا ایک سرپرائز ہوا کہ ایک یونیورسٹی کا گروپ تھا جو آئی تھنک MBA لیول کے بچے تھے، تو ان کو میں نے کہا کہ بھئی آپ بڑی اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ لیبر کلاس میں CBA کیا ہوتا ہے۔ تو وہ CBA کی آبزرویشنز کو جو یہ دے رہے تھے کہ جناب یہ جو ہے کلیکٹیو کوئی بورڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے۔ پھر ان کو میں نے بتایا کہ یہ لیبر لا میں کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہوتا ہے، یہ الیکٹڈ ہو کے آتا ہے، یہ ترجمان اس ادارے کا ہوتا ہے، پھر یہ رائٹس کے لیے چارٹر ڈیمانڈ پیش کرتے ہیں، اور یہ لوگ what is a trade union? So I thought here کہ اگر ٹریڈ یونین کا بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ یہ بنیادی طور پر جو گیپ ہے، جو بنیادی طور پہ اس کے ذمہ دار ہیں وہ ہے ریاست، کہ ریاست نے آپ کا تعلیمی نظام اس قدر فرسودہ بنا دیا ہے کہ آپ کے بچوں کو پتہ نہیں کہ ان فیوچر میں ہم نے کس طرف جانا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جو میڈیا کا رول ہے وہ بہت اہم رول ہے۔ اور میڈیا میں جیسے آپ کا گروپ ہوا، یہ تو ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے نا، جو بڑا گروپ ہے میڈیا کا، چاہے وہ سرمایہ دار تعلق رکھتے ہیں، وہ تو ہماری بات نہیں کرتے، ہم ورکنگ کلاس کی بات نہیں کرتے۔ تو آئی اپریشیٹ آل دوز ممبرز آف دا گروپ کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا، آج یہ ساجد صاحب ہو گئے یا رمضان صاحب ہو گئے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ہمیشہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ وی آر کولیکٹیولی جو ہے ہم اس اسٹرگل میں آگے بڑھ رہے ہیں جس میں ہماری آنے والے بچے جو ہیں دے پراؤڈ کہ ہم ایک ایسے سسٹم میں، ایسے نظام میں آگے بڑھ رہے ہیں جس سے ہماری رسپیکٹ جو ہے، ہماری جو ڈگنیٹیز ہیں،
हमारे जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद सईद हैदर है। मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एम्प्लॉइज फ्रंट सिंध CBA सूबा सिंध का मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हूँ और मैं एम्प्लॉइज फ्रंट सिंध की जानिब से और पाकिस्तान भर के मुलाजमीन की जानिब से रमज़ान अहमद को और साजिद विरक साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपना फोरम बनाया है, उसकी जानिब से इन्होंने एक तारीखी प्रोग्राम मेहरान होटल में किया है, जिसमें इन्होंने ख़ास तौर पे बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के तमाम मामलात को और तमाम मसाइल को उजागर किया और उसके साथ साथ इन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री को मुत्तहिद करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया है, जिस पे मैं इन दोनों साहिबान का तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों ने जो ये बेड़ा उठाया है बैंकिंग इंडस्ट्री का, इस सफ़र को जारी और सारी रखेंगे और इसके साथ साथ हम भी अपना ये फ़र्ज़ महसूस करते हैं कि हमें भी इनकी जो भी इन्होंने मेहनत कर रहे हैं, जो भी इनकी काविशें हैं इस अमल में, उस अमल को पाए तकमील तक पहुंचाना है और इनकी भरपूर मदद और इनकी हर तरह से इनको सपोर्ट करने का बाकायदा तौर पे हम ऐलान करते हैं। अब इसके बाद जिस तरह ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है, जिस तरह इस प्रोग्राम ने पजीराई पाई है और जिस तरह ये प्रोग्राम मकबूल हुआ है, उसकी मकबूलियत से ये अंदाज़ा किया जाता है कि अब ये इंशाअल्लाह ताला ये सफ़र जारी और सारी रहेगा और अब ये सफ़र सैकड़ों से हज़ारों में पहुंचेगा और हज़ारों से लेकर के ये पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बैंकिंग इंडस्ट्री के तमाम जगहों पे ये प्रोग्राम पहुंचेगा, ये आवाज़ पहुंचेगी और इनका जो पैगाम है रमज़ान साहब का और साजिद विरक साहब का, ये पैगाम बैंकिंग इंडस्ट्री के हर शोबे में कोने कोने में इंशाअल्लाह ताला पहुंचेगा। मैं इनका एक बार फिर तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने ये प्रोग्राम किया और ख़ास तौर पे हमें अपना एम्प्लॉइज फ्रंट सिंध की जानिब से एम्प्लॉइज फ्रंट सिंध के प्लेटफॉर्म को इन्होंने अपने फोरम की जानिब से एक अवार्ड से एजाज़ से नवाजा और ये अवार्ड मैं समझता हूँ खाली मेरा नहीं बल्कि ये पाकिस्तान भर के मुलाजमीन, काम करने वाले मुलाजमीन का अवार्ड है और ये इस बात की हमाजी करता है कि हम जिस तरह मुलाजमीन के मसाइल, मुलाजमीन के हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उसी चीज़ को महसूस करते हुए इन्होंने ये अवार्ड नवाजा है और मैं इस अवार्ड को पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन के नाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुलाजमीन बैंक की तरक्की, बैंक के इस्तेकाम और इसकी तरक्की के लिए अपनी भरपूर जद्दोजहद और अमली काविशें जारी रखेंगे। हमें जो है ना रमज़ान भाई से पहले मुलाकात है हमारी बैंक के हवाले से और साजिद भाई से भी। इन्होंने जो तकरीब की है माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीब है और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और ये काबिल तारीफ़ हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं और हमारा इनका साथ तकरीबन जो है तकरीबन 16 साल से मेरा इनका साथ है। हैदराबाद से ताल्लुक़ है मेरा और नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, राव ज़हीर नाम है मेरा और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसी तकरीब होती रहेंगी और ये काबिल तारीफ़ हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फाइनेंशियल न्यूज़ एडिटर काउंसिल की तरफ से ये तकरीब मुनक्किद की गई है, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? माशाल्लाह से ये हमारा जो पहली दफ़ा एक प्रोग्राम अरेंज किया है हमारे रमज़ान महीने फाइनेंशियल न्यूज़ के हिसाब से और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जितने भी हमारे बैंकर हजरात हैं सारे मौजूद हैं, सीनियर बैंकर्स हमारे, जैसे अभी मेरी मुलाकात हुई लियाकत साई साहब स्टेट बैंक के हमारे माशाल्लाह से बहुत पुराने और सीनियर हमारे बैंकर्स हैं और हमारे सीनियर साथी हैं, तो एक बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ सबसे मुलाकात 1-to-1 मुलाकात हो रही है और एक अच्छा अभी प्रोग्राम शुरू हुआ नहीं है लेकिन यहाँ के महसूस बहुत अच्छा हो रहा है कि ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा और ये जो है ऐसा प्रोग्राम मैं कहता हूँ रमज़ान में हर साल करने चाहिए। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन लग रहा है। मोहम्मद रमज़ान की ये काविशें हैं, इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया है। मोहम्मद रमज़ान साहब का जो है ना अखबार के हिसाब से बहुत पुराना सिलसिला इसका चला रहा है और बहुत बेहतरीन इसका अखबार है, पॉजिटिव जो है ना ख़बरें लगाता है। ऑफिसर एसोसिएशन के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और यूनियंस के लिए बहुत बड़ा काम किया है
जुमला ये है कि इन्होंने हर एक के साथ, ये नहीं कि इसको जो है ना रुस्तम भाई हैं तो उनको जो है ना इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और दूसरों को छोड़ दिया, ये सबको लेके चलने वाला शख्स है। और इसके साथ साजिद भाई हैं, साजिद भाई ने भी बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है माशाल्लाह, और हम पर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला बेहतरीन होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर एडिटर काउंसिल की तरफ से ये तकरीब मुनक्किद की गई है, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? हम लोग फर्स्ट टाइम हबीब बैंक की जानिब से यहाँ पे इस तकरीब में आए हैं, शकील भाई और हम। लेकिन ये प्रोग्राम, इस टाइप के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम होते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छा गेट टुगेदर भी हो रहा है, और तमाम बैंकों के जो मुलाजमीन हैं और एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो लोग हैं, और जितने भी अखबारात के नुमाइंदे, उसे एक मिलना जुलने का मौका भी मिल रहा है, और एक तरीके से ये समझ लें कि रवाबित बढ़ते हैं और इनसे एक दूसरे से काम जो भी हैं निकलते हैं। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, और ऐसे प्रोग्राम होने से बहुत सारी चीज़ें अप डाउन जो हो रही होती है तो उनकी मालूमात होती है, फिर अच्छा एक तासुर भी जाता है। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए बैंकों के अंदर, ताकि एक दूसरे से बैंक्स के जो स्टाफ हैं एक दूसरे से मिलें और उनको पता चले कि किस बैंक में क्या मामला चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। रमज़ान भाई का हम शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें फ़र्स्ट टाइम हबीब बैंक की जानिब से इनवाइट किया, और हम चाहेंगे कि हबीब बैंक को हम रिप्रेजेंट करें, तो हबीब बैंक का नाम हमारा हर जगह ऊपर हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर एडिटर काउंसिल की तरफ से ये तकरीब मुनक्किद की गई है, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? ये बेहतरीन प्रोग्राम है, ये रिकग्नाइज कर रहे हैं हमारे इदारे के कुछ लोगों को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर। तो ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है। इस तरीके की इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि हमारी और कारकर्दगी इस तरीके से और निखार उसमें पैदा होता है। तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, रमज़ान भाई का और साजिद भाई का, कि इन्होंने इस तरीके का एक इवेंट रखा है नेशनल बैंक के लोगों को रिकग्नाइज करने के लिए। तो इस तरीके से अगर ये आगे भी चलाएंगे तो ये मामलात यकीनन और भी आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे। असल में ऐसे प्रोग्राम जो है चलते रहने चाहिए, इससे जो है ट्रेडिंग को और लोगों को जो है पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम लाता है, बहुत अच्छी बात है। और हम ऐसे प्रोग्राम की हिमायत करेंगे और उनके साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद इस्माइल है, मैं मनीपल इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ। पाकिस्तान में सनती कारोबारी सरगर्मियों में बैंकिंग इंडस्ट्रीज को फरोग देने में मीडिया का किरदार बहुत अहम रहा है। इन शोबों में शाया होने वाली अखबारात से मुश्तमिल साफ़ी हजरात का किरदार बहुत अहम और काबिल सताइश है, जिसमें बैंकिंग एक्सप्रेस और तमाम फाइनेंशियल न्यूज़पेपर एडिटर्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की काविशों को हम सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान में वन एप्पल एक अहम किरदार अदा कर रहा है। यहाँ पाकिस्तानी मसनूआत की प्रोडक्शन और असेंबलिंग का यूनिट लगाया गया है, जिसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, ऑल इन वन कंप्यूटर्स यहाँ बना रहे हैं। पाकिस्तान में पहली मरतबा जो कीबोर्ड और माउस यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी किए जा रहे हैं, जिससे हम एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार के मौका फराहम करेंगे। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर एडिटर काउंसिल की हालिया होने वाली तकरीब में वन एप्पल की बेहतरीन कारकर्दगी पर नंबर 1 वाली कारकर्दगी पर आने के बाद आपको वन एप्पल कंपनी को अवार्ड दिया गया, इसके लिए क्या ख्याल है? सर, इसके लिए हम पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम जो एक काबिल सताइश है और उसकी जितनी तारीफ़ की जाए बहुत कम है, और एक बहुत मैनेज प्रोग्राम किया गया था, उसके लिए हम उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद डायरेक्ट फाइनेंशियल न्यूज़पेपर एडिटर्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता रोज़ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, वन एप्पल और फाइनेंशियल न्यूज़पेपर एडिटर्स काउंसिल की जानिब से एक मुश्तरका काविश के तहत नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के SQG ग्रुप, जिसमें मीडिया, स्पोर्ट्स और CSR शामिल हैं, उनको आला कारकर्दगी बुनियाद पर अवार्ड दिए गए थे। लेकिन हमारे चंद साथी जो उस दिन निजी मसरूफियात के बायस वहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके, उन्हें आज हम यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस में जनाब शौकत महमूद खटक साहब, ग्रुप हेड SQG, उनके ऑफिस में उन लोगों को अवार्ड दे रहे हैं। सबसे पहले मैं जनाब CSR ग्रुप के डिवीजनल हेड जनाब इकबाल वाहिद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो
تشریف لائیں اور جناب شوکت محمود خٹک صاحب سے اپنا ایوارڈ وصول کریں. CSR کے سینئر مینیجر جناب جہانگیر ہارون صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اقبال واحد اور شوکت محمود خٹک صاحب سے دونوں ہمارے جو سینئر ایگزیکٹوز ہیں ان سے ایوارڈ وصول کریں. جناب جہانگیر ہارون. آصف صاحب ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور شوکت محمود خٹک صاحب سے اپنا ایوارڈ وصول کریں. جناب آصف صاحب. نیشنل بینک آف پاکستان کے برانڈ مینیجر جناب آصف بشیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ شوکت محمود صاحب سے اپنا ایوارڈ وصول کریں. جناب آصف بشیر. محمد شریف ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا ایوارڈ وصول کریں. جناب شہاب قاضی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور شوکت محمود خٹک صاحب سے اپنا ایوارڈ وصول کریں. سراج اللہ انصاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے گروپ ہیڈ جناب شوکت محمود خٹک صاحب سے اپنا ایوارڈ وصول کریں. جناب سراج اللہ انصاری صاحب. محمد نصیر احمد صاحب وہ تشریف لائیں اور خٹک صاحب سے اپنا ایوارڈ وصول کریں. فوٹوگرافر کے طور پہ کیا ہے کیونکہ میڈیا گروپ جو ہے وہ فوٹوگرافر کے بغیر نامکمل ہے اور وہ ہمارے ہیں عبد السعید خان. جناب وہ اپنا بھی ایوارڈ وصول کریں گے جناب شوکت محمود خٹک صاحب سے. محمد شعیب صاحب. اب میں زحمت دوں گا جناب داؤد بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. اب میں جناب شوکت محمود خٹک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا ایوارڈ موجودہ عزیز اور جناب محمد رمضان علی سے وصول کریں. جناب شوکت محمود خٹک صاحب. Thank you so much.